Hey guys, I welcome you all on today's video learning session. This is your educator Anup Kumar Singh, and today I'm going to start some basic information, some geographical entities, because many of you have requested me to start the lesson number 1 from the class 9, that is India and its location. So in order to know the Indian location, we have to understand these geographical entities because it is widely used over there. वहाँ इसका बहुत इस्तेमाल किया गया और जब तक आप इसको अच्छी तरीके से नहीं समझोगे तो वहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं होगी. सो वेर एवर आई स्टार्ट द क्लास 9 जोग्राफिक चैप्टर 1, यू नो दिस इज़ माई आई एम हैबिचुएटेड, और यू कैन से आई एम दिस इज़ माई हैबिट कि मैं पहले इन चीज़ों को एक बार फिर से वो करता हूँ, रिपीट करता हूँ. ओके, सो एंड आई एम 100% श्योर दैट यू माइट हैव लर्नड अबाउट दिस टॉपिक्स इन योर प्रीवियस क्लासेस. So what are those? Let us see. So today we are going to learn about the geographical entities like the latitudes and the longitudes. So let us start the first thing we are having, that is the globe. Now what is globe? Globe is a true model of the earth in the miniature form. यानी ग्लोब जो है धरती का आकार है, एक मॉडल है, उसको मॉडल के रूप में स्वीकार किया गया है in the miniature form, in the shortest form. If you haven't seen the globe, you can look over here. So this is a globe, this is the model of the earth, and it keep on rotating it and keep on moving. Now the next thing, axis. Now needle is a fixed, now please ignore my bad handwriting. Needle is a fixed through the globe in a tilted manner, which is called its axis, right? If you can see the globe, there is a needle fixed on both the ends, and because of this the earth is slightly tilted, right? Now whenever I say the earth is having the geoid shape or the obloid shape, or many of the books you can find that the earth is a guava shape, है ना. तो जो एक्सिस है वो क्या है, नीडल फिक्स्ड होता है दोनों एंड में, जिसकी वजह से अर्थ मुड़ा हुआ है और उसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस. एंड बिकॉज ऑफ दिस एक्सिस द अर्थ रोटेट्स. सो लेट अस एज्यूम दैट इफ दिस इज अ अर्थ, अगर मैं इसको अर्थ को मानूं, and these two ends are needle, यहाँ से अगर needle के पास करता जो if I pass this line from over here, and because of this the earth is tilted. It is tilted how much, कितना मुड़ा हुआ है, 23.5 degree north, right? And because of this axis we have a two poles, that is the north pole and the south pole on both the ends, right? So you can see here that we have a globe, right? We have a globe, and here we have a needle, and because of this the globe is not straight, it is slightly tilted. I hope you can see and hope you understood, right? So this is all about the axis. Now we all know that the imaginary line which passes the earth from the middle, it is known as the equator, and its value is 0 degree. And due to this we have two halves of earth, that is the northern hemisphere and the southern hemisphere. इसी की वजह से because of this equator, because of this imaginary line which passes from the center, the earth is divided into two parts, that is the northern hemisphere and the southern hemisphere. In the northern hemisphere we have the extreme end north pole, in the southern hemisphere we have the extreme end south pole, right? So look here, you can see the equator. Just see my hand, see my finger. Let me zoom for you. So here you can see the equator, right? Just see that it passes from middle of the earth, right? Now what are latitudes? The most important, what are latitudes or parallel of latitudes? It means latitudes is also known as the parallel of latitudes. All parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitudes, are called parallels of latitudes. It means suppose I draw a globe, या फिर मैं एक अर्थ बनाऊं, right? Let us consider that I have drawn a globe, and here these two ends are the poles, north pole and the south pole, right? And from the middle of the earth I passed a line, imaginary line, I draw imaginary line which is 0 degree. As a result the earth is divided into two parts, northern hemisphere and the southern hemisphere. अब जो होगा, एक चीज समझने की जरूरत है, क्यों इसको पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोला गया. यानी यू नो फ्रॉम दिस आई स्टार्टेड ड्रॉइंग अ पैरेलल्स, राइट? मैंने एक पैरेलल्स बनाना शुरू कर दिया, ये एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ज्वाइन करना शुरू कर दिया, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस एंड दिस, राइट? सो बिकॉज ऑफ दिस पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, राइट, इसके वजह से क्या हो रहा है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे
राइट। सपोज ये 0 डिग्री है, मैंने एक और पैरेलल्स बनाया 20 डिग्री, एक और बनाया 40 डिग्री, एक और बनाया 60 डिग्री, एक और बनाया 90 डिग्री, इधर भी बनाया 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इट मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, राइट। तो यानी इसकी वजह से हम क्या देख रहे हैं कि हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बना रहे हैं। और ध्यान से रखने वाली बात ये है कि ये जो हमारा जो अर्थ है, राइट, दिस इज द अर्थ, ये you know the latitude is the complete circle, latitude ये complete circle है। अब आप बोलोगे सर it is a semicircle because we can only draw the latitudes over this part only, but what about this? अगर suppose this is a globe, यहाँ समझो, suppose this is a globe, this is the earth, if I draw from equator, if I draw one parallels over here, again from here 60 degree and 80 degree and finally 90 degree, तो वो तो मैंने फ्रंट में बनाया, पीछे का क्या, यहाँ भी तो वो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बन के आएगा। इट विल कवर द होल एरिया, इट विल कवर द होल डिस्टेंस, यस और नो, राइट। सो इसी वजह से क्या होता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इज अ कंप्लीट सर्कल, बट द बिगेस्ट सर्कल, द बिगेस्ट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड और द बिगेस्ट लैटिट्यूड विच लाइज ऑन द अर्थ इज दिस, दैट इज इक्वेटर। यानी वो यहाँ पे होगा और साथ साथ पीछे भी होगा। यानी जो बिगेस्ट सर्कल्स जो बनता है, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बनता है, वो कौन सा है, 0 डिग्री, इक्वेटर। और उसके बाद जितने जो लैटिट्यूड्स बनते हैं, व्हाट एवर द पैरेलल्स विल बी ड्रॉ और और वी हैव ड्रॉन, वो क्या होंगे, उनके जो आकार होंगे वो छोटे होते चले जाएंगे, राइट। नाउ व्हाई इट इज 90 डिग्री, सिंस इसका भी एक लॉजिक फॉर्मूला आपको मैं बता देता हूं, क्यों ये 90 डिग्री उधर आ रहा है, या फिर दोनों हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर 90 डिग्री में क्यों पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आ रहे हैं। सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ द पोल्स इज 1/4 ऑफ द सर्कल। यानी अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखोगे ना, तो वो कितना है, वो है 1/4, राइट। इट इज 1/4 फ्रॉम द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू द circle, sorry, from equator to the poles the distance is 1/4, and we know that our earth is in a circular shape, right? See, our earth is in a circular shape in a tilted manner which keeps on moving. If our earth is in a circular shape and in a tilted manner, it means what is the value of the circle? circle का वैल्यू कितना होता है, सर्कल का वैल्यू होता है 360। तो अगर 360 है और इक्वेटर से पोल की डिस्टेंस 1/4 है, so if you just try to find out the value of 1/4 into 360, you will get the 90 degree. See, I have find out 90 degree, right? So it means 90 डिग्री ऊपर, 90 डिग्री नीचे, चाहे वो आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ले लो या फिर आप साउदर्न हेमिस्फीयर में ले लो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड्स। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लैटिट्यूड्स। यानी जो नॉर्थन पोल में आएगा, जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में आएगा, इस जो पैरेलल्स होंगे, ये जो लैटिट्यूड्स मिलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उसको हम लोग बोलेंगे नॉर्थ लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इन द साउदर्न, और जो साउथ में आएंगे वी विल से दैट द साउथ लैटिट्यूड्स इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। हियर आई हैव रिटन SH in the short form southern hemisphere and NH in the northern hemisphere, right? The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. It is indicated by the letter N or S, right? It is हम लोग इसको किससे इंडिकेट करते हैं, N और S से। यानी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कितना डिग्री नॉर्थ में है, कितना डिग्री S में है। लैटिट्यूड जो होगा वो सर्कल होगा, राइट। बिगेस्ट सर्कल कौन सा होगा, इक्वेटर। एंड बिकॉज ऑफ दैट वी जनरली से देम बाय देयर नेम, बिकॉज it lies, if it lies on the northern hemisphere we say north, if it lies in the southern hemisphere we say south. Now for example, let us see the example, and this is very very important example. ये question objective के लिए definitely it is most repeated and maybe it will come for the UPSC in the PCS examination. That see the example, Chandrapur in Maharashtra, India, and Belo, I hope you can see and my voice is audible, and Belo Horizonte, that is in Brazil, are located on parallels of about 20 degree latitude. यानी कि अगर यहाँ देखो, यानी कि सपोज मैंने एक अर्थ बनाया, एक ग्लोब बनाया और मैंने बीच से इक्वेटर पास किया, दिस इज इक्वेटर एंड दिस वैल्यूज इज 0 डिग्री। अब क्या बोल रहे हैं कि चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, राइट, चंद्रपुर इन महाराष्ट्र, इंडिया, and Belo Horizonte, Brazil are located on parallels of about 20 degree latitude, यानी 20 डिग्री लैटिट्यूड में है। So if I consider
So if I consider that this is the equator and this is the 0 degree, this is 0 degree, तो यहाँ पे कहीं आसपास 20 डिग्री होगा, तो मैं यहाँ पे लोकेट कर रहा हूँ 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, यानी नॉर्थन हेमिस्फीयर में चंद्रपुर, यानी इसलिए मैं लिखा चंद्रपुर 20 डिग्री नॉर्थ। फिर बोल रहा है इन द साउदर्न हेमिस्फीयर साउथ लैटिट्यूड, इसी 20 डिग्री पे ही वी आर हैविंग द बेलो होरिजोंटे, दैट इज 20 डिग्री साउथ। तो इट मीन्स these on the same parallels यानी इसी पैरेलल्स पे, राइट, इसी पैरेलल्स पे आपका 20 डिग्री चंद्रपुर भी लोकेटेड है और बेलो होरिजोंटे भी लोकेटेड है। इसी तरह से आप यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द प्लेस ऑफ एनी लैटिट्यूड, चाहे वो 45 डिग्री हो 60, अगर मान लो सपोज आपको बोला कि फाइंड आउट द लोकेशन एट 45 डिग्री, राइट, तो यू कैन सिंपली ड्रॉ अर्थ, राइट, बीच से एक 0 डिग्री पास होगा, 0 डिग्री पास होगा, 45 बोला है, 20 अगर यहाँ होता है 30, 45, राइट, तो 45 कहीं आसपास इधर आएगा, तो यू कैन डायरेक्टली से 45 डिग्री। ये कौन से हेमिस्फीयर है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज द साउदर्न हेमिस्फीयर, तो यू कैन डायरेक्टली से दैट दिस प्लेस इज लाइज ऑन द 45 डिग्री साउथ लैटिट्यूड और साउथ पैरेलल्स ऑफ latitude, right? So this is how we can find the place on the latitude. Now there are some important latitudes, so this is a very important question, that name the place which is lies on the 20 degree and south of 20 degree latitude. So we can say Chandrapur in the Maharashtra as 20 degree north and Belo Horizonte in Brazil at 20 degree south latitude. But see, so complete करते हैं sentence को, but the former is 20 degree north of equator and the latitude is 20 degrees south of it. जैसे कि मैंने बताया इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ में कौन है? चंद्रपुर, और 20 डिग्री साउथ में कौन है? बेलो होरिजेंटे. So it means it is clear that latitude is always determined, the place of any location is always determined, if we try to find out latitude or longitude, it is always determined by the biggest circle on the earth, the imaginary line which passes the earth from the center. As a result the earth gets divided into two parts, that is equator, यानी इक्वेटर के आधार पर ही on the respect of equator we are supposed to find the latitudes or longitudes. On the with the respect of equator we were supposed to find that whether it is like 20 degree north or 20 degree south. Now there are some important parallels of latitude, that besides the equator that is 0 degree, the north pole that is 90 degree and the south pole that is the 90 degree south. जैसे मैंने आपको बताया, there are 4 important parallels of latitudes. These are very very important which you have to read, आपको याद रखने. यानी इक्वेटर तो है ही, है ना, 0 डिग्री हमारा एक सर्कल नॉर्थ पोल में, साथ साथ नॉर्थ पोल साउथ पोल तो है ही, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया था, देखो ये नॉर्थ पोल, यहाँ पे साउथ पोल, ये तो है ही. दोनों का वैल्यू क्या है? 20 डिग्री, इक्वेटर 0 डिग्री, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल 90 डिग्री साउथ. देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, लाइक व्हाट आर दे? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी कहाँ होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसके लिए आपको मैं एक फिगर दिखाता हूँ, राइट? Just hold a moment. And yes, my dear students, these are the source, these are the source I have taken from the class 6 NCERT books, so that we can understand the things better, and it is going to help us to understand the class 9 first chapter clearly. So यहाँ देखो, right? So ये जो है सर्कल है, ये हमारा हो गया साउथ पोल 90 डिग्री, ये हो गया नॉर्थ पोल 90 डिग्री इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, राइट? So we have what we have tropic of cancer 23.5 degree north in northern hemisphere, यानी tropic of cancer, this one, can you see this line 23.5 degree tropic of cancer. कौन से पोल में है, कौन से हेमिस्फीयर में है? नॉर्थ. यहाँ पे लिखा है, देखो नॉर्थ लिखा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. अगेन वी हैव tropic of capricorn 23.5 degree south in southern hemisphere over here, that is tropic of capricorn 23.5 degree south in the southern hemisphere, and the arctic circle that is 66.5 degree north of the equator. आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, ये इक्वेटर के नॉर्थ में आर्कटिक सर्कल, ये वाला, ये कितना वैल्यू है इसका? सॉरी, ये वाला कितना वैल्यू है? 66.5 डिग्री. एंड लास्ट वन अंटार्कटिक सर्कल एट 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, यानी कि दिस वन साउथ पोल का जो है, यहाँ पे जो एक सर्कल जो बना रहा है साउथ पोल के पास, उसका वैल्यू कितना है? 66.5 डिग्री. यानी दीज आर व्हाट? दीज आर लैटिट्यूड्स. ये भी लैटिट्यूड्स हैं
चार महत्वपूर्ण लैटिट्यूड्स हैं, दीज आर द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, यानी लैटिट्यूड्स के दो नाम, लैटिट्यूड्स एंड द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, राइट। नाउ व्हाट कैन द लैटिट्यूड गिव अस, लैटिट्यूड्स इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं वो भी जान लो। लैटिट्यूड गिव्स द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड गिव्स द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। द फर्स्ट वन इज द टॉरिड जोन। व्हाट इज टॉरिड जोन? द midday, I hope it is clear, let me zoom in, yeah. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. Therefore, it receives maximum heat and called torrid zone. यानी क्या बोल रहा है कि कम से कम साल में एक बार सर क्या होता है, इट इज डायरेक्टली at our overhead or on all latitudes, सारे लैटिट्यूड्स में कम से कम एक बार सीधे सूर्य की जो किरणें होती है सीधे पड़ती हैं। कौन से दो रीजन में? इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इसको क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द टॉरिड जोन। यानी ये इलाकों में देखो, ये इक्वेटर हो गया, इक्वेटर के बीच में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ में एंड 23.5 डिग्री साउथ में, यानी ये वाला जो बीच वाला इलाका है फ्रॉम हियर टू हियर, 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, ये वाला जो बीच के जो इलाके हैं इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टॉरिड जोन। यानी यहाँ पे गर्मी ज्यादा होती है, राइट। इट मीन्स द लैटिट्यूड्स ऑल्सो गिव्स द टॉरिड, दैट इज द डिफरेंट हीट जोन्स ऑन द अर्थ, और द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड गिव्स द हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। सेकेंड वन वी हैव द टेम्परेट जोन। Region lies between the Tropic of Cancer 23.5 degree north to Arctic Circle 66.5 degree in the northern hemisphere and 23.5 degree to Antarctic Circle and 66.5 degree south to southern hemisphere. Let me do one thing. Let me put my phone in the aeroplane mode. Right. So when I am repeating, region lies between Tropic of Cancer 23.5 degree north to Arctic Circle and 66.5 degree in the northern hemisphere and 23.5 degree south to Antarctic Circle and 66.5 degree south to southern hemisphere। वो कौन सा उसको बोलते हैं? टेम्परेट जोन। यानी जो रीजन है ये वाला रीजन, राइट, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके 66.5 डिग्री आर्टिक सर्कल से नॉर्थ वाले में, और उसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से लेके 66.5 डिग्री हमारे अंटार्कटिक सर्कल में। इन दोनों बीच को ये वाले जो रीजन है ये वाले क्या होते हैं? टेम्परेट जोन। ये वाले क्या हो गए? टेम्परेट जोन। ये वाले क्या हो गए? टेम्परेट जोन। कहाँ से? 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66.5 डिग्री नॉर्थ, राइट, टू द आर्कटिक सर्कल एंड अगेन 23.5 डिग्री फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन टू द 66.5 डिग्री अंटार्कटिक सर्कल। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेम्परेट जोन। और जैसा कि लास्ट में आपको पता है दैट इज द फ्रीजिड जोन। Areas lies between in the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold and known as the frigid zone. Areas lies between the Arctic Circle and in the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold। यानी हमारा ये वाला जो रीजन है नॉर्थ पोल के 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल वाले और साउथ पोल में यानी साउदर्न हेमिस्फीयर में 66.5 डिग्री साउथ वाले में, ये वाले जो पोल्स के रीजन होंगे, यानी ग्लोब में अगर मैं बता दूं, रुक जा भाई, यानी ये यानी ये वाले जो दोनों रीजन्स होंगे यहां से लेके यहां तक नीचे वाले, दीज आर नोन एज द फ्रीजिड जोन, राइट, बिकॉज दे आर लोकेटेड नियर द पोल्स। यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती। सो कौन सा सबसे ज्यादा हीट होगा? दिस वन, टॉरिड जोन। उसके बाद टेम्परेट जोन, उसके बाद लास्टली वी हैव द फ्रीजिड जोन। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, राइट, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? तो इसके बारे में समझ लो बच्चे, just try to understand, and this is the reason why I do not make the video on that laptop on my system, because I can't draw these images over there. I'm not a graphic designer and I'm very bad in drawing the diagrams. Anyway, what are longitudes?
So just look and listen my statement. To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of the place. Yani, if you want to locate some place, latitude is not enough. We know something more geographical entities. अब example क्या है? For example, and this is very very important. What is that? Yeah, Tonga Islands in the Pacific Ocean and Mauritius Islands, which lies in the Indian Ocean, are situated on the same latitude, 20 degrees south. Now, in order to locate them precisely, we must find out how far east or west these places are from a given line of reference running from North Pole to the South Pole. यानी उसने क्या बोला? उसने बोला यहाँ से देखो, अभी ये सब भूल जाओ, अभी यू जस्ट कंसिडर दैट आई कंसिडर्ड वन अर्थ, आई जस्ट कंसिडर्ड वन ग्लोब और अर्थ मॉडल. यहाँ पे बोल रहा है कि 20 डिग्री लैटिट्यूड में, यानी बीच में तो ये हमारा है ही, बीच में हमारा तो ये इक्वेटर है ही, राइट, बीच में हमारा तो 0 डिग्री है ही. ये बोला है कि टोंगा आइलैंड्स, देखो यहाँ पे लुक हियर, टोंगा आइलैंड्स इन द पैसिफिक ओशियन एंड मॉरिशियस आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, यानी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे ही दो ऐसी जगह हैं, दैट इज द टोंगा आइलैंड्स एंड द मॉरिशियस आइलैंड्स. दे आर बोथ लाइंग इन द सेम लैटिट्यूड्स, राइट, सेम लैटिट्यूड्स. नाउ अब हमें ये तो पता है कि एक ही लैटिट्यूड्स में, लेकिन भैया कौन दाईं तरफ है, कौन बाईं तरफ है, विच लाइंग ऑन द ईस्ट साइड, विच लाइंग ऑन द वेस्ट साइड, ये कैसे पता करेंगे, राइट, तभी तो हम बोल पाएंगे वी कैन से दैट इट लाइज इन द 20 डिग्री. बट यहां से तो आपको कुछ आइडिया नहीं मिल रहा है. सो इन ऑर्डर टू गेट दिस, हमने क्या किया, वी सिंपली ड्रॉ वन लाइन फ्रॉम टॉप टू बॉटम. हमने ऊपर से नीचे तक एक लाइन खींच दिया फ्रॉम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से टू साउदर्न हेमिस्फीयर. इससे क्या हो गया, वी गेट द लोकेशन. आपको ये चार्ट पता होगा, दैट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. अब नाउ वी कैन से दैट दिस मॉरिशियस लाइज इन द 20 डिग्री वेस्ट of latitude and this 20 degree Tonga lies in the sorry, this is not west, this is east, maaf karna, and this is 20 degree west of latitude. So what are longitude are the point of reference which divide the earth from top to bottom or from the northern hemisphere to southern hemisphere to get the accurate location. So two things are important, that is the लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स. यहाँ पे भी वही बात की, राइट, दीज लाइन्स ऑफ, सॉरी यहाँ देखो, इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइसली वी मस्ट फाइंड आउट हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, एंड दीज लाइन ऑफ रेफरेंसेस आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. यानी लॉन्गिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का एक और नाम हमें मिल गया, दैट इज meridians. So longitudes are also known as the meridians of longitudes or longitudes, right? And the distance between them are measured in degrees. जैसा कि आपको पता है degrees of longitude, यानी इनका जो distance होगा हम लोग किससे मेजर करते हैं, डिग्री में. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds, right? इसी वजह से देखो हमारे इंडिया का लोकेशन भी कुछ इस सेकेंड्स में आता है, मिनट्स में आता है, राइट. यानी it is the measure of the there we can do the measuring of this latitude into degree, then degree into minutes, and if we go on further we can measure into seconds. Now this line is very important, that's why I have marked it with a red ink. See, they are semicircles and the distances between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the pole where all meridians meet. They are semicircles, but the equator is what? Equator here is the complete circle. यहाँ देखो जो लैटिट्यूड होंगे, यानी लैटिट्यूड मैंने बनाया, सपोज कि मैंने अर्थ बनाया, बीच में मैंने ये एक इक्वेटर बना दिया, ये बिगेस्ट इक्वेटर बना रहा है, राइट, ये बिगेस्ट सर्कल बना रहा है, तो ये तो एक सर्कल बना रहे हैं. उसी तरह से और भी एक सर्कल बन रहे हैं, आगे भी पीछे भी, तो यानी ये कंप्लीट सर्कल तो बना रहे हैं, राइट. बट ये जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स जो होंगे, ये क्या है, ये हैं लॉन्गिट्यूड्स.
ये हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे, ये सपोज मैंने फिर से अर्थ बनाया, ये क्या है, ये तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से रन कर रहे हैं, यहाँ से कि यहाँ तक, तो इसने एक सर्कल बनाया, राइट, हाफ, लेकिन देखो ये पीछे सर्कल नहीं बना रहा है, क्यों, बिकॉज इट इज, इससे दो भागों में इधर अर्थ बट रही है, एक इधर बट रही है। तो दीज आर द सेमी सर्कल्स, यहाँ से एक सेमी सर्कल, यहाँ से एक सेमी सर्कल, यहाँ से एक सेमी सर्कल, यहाँ सेमी सर्कल, यहाँ सेमी सर्कल, यहाँ सर्कल। इट मीन्स ओनली लैटिट्यूड्स आर कैपेबल टू मेक द फुल सर्कल, हाउएवर द लॉन्गिट्यूड्स और द मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर कैपेबल टू मेक द सेमी सर्कल। और लास्टली देखो, शुरू में यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस इनका ज़्यादा है, फिर यहाँ से यहाँ, शुरू में यहाँ से यहाँ तक इनका डिस्टेंस इनका ज़्यादा है, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टू साउदर्न हेमिस्फीयर, फिर यहाँ से कुछ और कमा, फिर यहाँ से कुछ और घटा, फिर यहाँ से कुछ और घटा, फिर यहाँ से कुछ और घटा, यानी आखिरी में क्या होता है, जैसे जैसे ये पोल से, वही मैंने लिखा है, दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो। उसी तरह से क्या होगा, यहाँ से ये बढ़ेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे, यहाँ से बढ़ेंगे, और पोल तक आते आते इनका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड नाउ। अब एक चीज आपको समझनी है, व्हाट इज प्राइम मेरिडियन, राइट। आई होप दिस डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट आर longitudes divide the earth from the north pole to the south pole or the northern hemisphere to the southern hemisphere. They are semicircles, right? And because of this we can get the we can determine the location on the respect of equator on the eastern side or the western side. एक चीज और निकल के आती है कि इसी लॉन्गिट्यूड के वजह से हमारा जो अर्थ है दो और हेमिस्फीयर में बढ़ता है, दो और भागों में बढ़ जाता है, दैट इज द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसी वजह से हम लोग बोलते हैं 20 डिग्री ईस्ट एंड 20 डिग्री वेस्ट। सो विच आर द टू प्लेसेस विच लाइज ऑन द सेम लैटिट्यूड, टोंगा एंड where is that Mauritius Islands. So I hope this is clear to all of you. Now let's move to the prime meridian. एक और topic, what is prime meridian? You know these things you have already read, but if it is not clear to all of you, then you will find difficult and you will feel trouble. तो क्लास 9 का जो चैप्टर है उसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको। Anyway, let's see here. Unlike parallels of latitudes, all meridians are equal length. जैसा कि मैंने बताया ये इनका लेंथ इक्वल होगा, बट द डिस्टेंस जो होंगे क्या इक्वल होगा, बट दे आर द सेमी सर्कल्स होंगे, राइट, दे आर द सेमी सर्कल्स, इनको मेरिडियंस भी बोलते हैं। अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ऑल मेरिडियंस ऑफ इक्वल लेंथ। नाउ इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, यानी अब इनका तो लेंथ सेम है, यानी इनका लेंथ सेम है, बट क्या हो रहा है कि जैसे जैसे ये पोल से दूर होते जा रहे हैं, इनका डिस्टेंस क्या होता है, लास्ट में आके जीरो हो जा रहा है, तो इट इज बिकम वेरी डिफिकल्ट to number them, right? Hence all countries decided that the count should begin from the meridian. यानी ये जो लॉन्गिट्यूड है इसको बोला गया मेरिडियन और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और सबने डिसाइड किया कि यहीं से हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, कितना वो ईस्ट में है कितना वेस्ट में है। should begin from the meridian which passed through Greenwich where the British Royal Observatory is located. यानी ये जो प्राइम मेरिडियन है ये क्रॉस करती है कहां से, ग्रीनविच मेरिडियन वेयर दैट इज लंदन में, राइट। तो उसके दैट इज, और वहां पे क्या स्थित है, दैट इज द ब्रिटिश ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। द मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन, और इसी को बोला गया प्राइम मेरिडियन, राइट। यानी जो बिगेस्ट लैटिट्यूड, जो धरती को, ये जो लॉन्गिट्यूड है जो धरती को दो भागों में बांट दिया, द बिगेस्ट मेरिडियन विच डिवाइड द अर्थ इनटू टू पार्ट्स, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, विच ड्रॉन फ्रॉम द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इट इज नोन एज द ग्रीनविच मेरिडियन, which passes from the Greenwich, it is known as the prime meridian, right. Its value is 0 degree longitude and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward, right. यहाँ से ये देखो, ये तो 0 डिग्री इनका डिस्टेंस मैंने बताया है, बट आपको तो पता है नॉर्थ पोल 90 है, ये 90 है, यानी इधर 90 और पीछे भी 90, यानी कितने होंगे 180, 90 180, पीछे भी 90 180, है ना।
तो यानी इसी के आधार पे क्या बोल रहा है, इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 डिग्री वेस्टवर्ड। यानी इसी के आधार पर 180 डिग्री हम लोग इधर काउंट करेंगे और उधर काउंट करेंगे, राइट, ईस्टवर्ड वेस्टवर्ड। प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ टू हाफ्स, दैट इज ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिकॉज ऑफ द प्राइम मेरिडियन, बिकॉज ऑफ दिस मेन लाइन, द अर्थ इज डिवाइडेड इन टू पार्ट्स, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द southern hemisphere. Now we can locate, wait a moment, right, now we can locate any point on the globe very easily if we know its latitude and longitude. For example, Dhubri in Assam is situated at 26 degree north latitude and 90 degree east longitude. अब यहाँ देखिए, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे चलिए मानिए, लेट अस एज्यूम, ये देखो ये हमारा एक अर्थ है, राइट, एक अर्थ है। देखो यहाँ से बीच में प्राइम मेरिडियन पास है, दिस पास द प्राइम मेरिडियन, दिस इज द 0 डिग्री इक्वेटर, राइट, 0 डिग्री इक्वेटर। अब क्या बोल रहा है, वी कैन लोकेट एनी पॉइंट। फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू, फॉर एन एग्जाम्पल, धुबरी इन असम इज सिचुएटेड एट 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो लेट अस एज्यूम, अगर देख ले, अगर मान लो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बोला है ना, नॉर्थ में 26 डिग्री, लुक हियर, 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, राइट। सो इफ दिस इज अ 0 डिग्री और 20 डिग्री अगर यहाँ पे आ रहा है, तो 26 डिग्री कहीं आसपास कहीं यहाँ पे होगा। आई एम जस्ट गिविंग वन पॉइंट, दिस इफ दिस इज अ 20 डिग्री, राइट, तो 26 डिग्री लेट अस एज्यूम कि यहाँ पे कहीं होगा, राइट, हाँ, यहाँ पे कहीं होगा 26 डिग्री। और क्या बोला, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। अगर ये 40, 60, 80 है, 90 कहीं यहाँ पे होगा, तो यानी यहाँ से जो कहीं पॉइंट आके इसको मीट करेगा, यानी ये वाला अगर 90 डिग्री यहाँ पे मीट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, धुबरी को। यानी वी कैन फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। वन ऑफ माई स्टूडेंट्स शांति, राइट, एंड वन ऑफ माई स्टूडेंट ऑल्सो, उसका नाम भी शेखर था, उसने पूछा था डेट हाउ कैन वी लोकेट द प्लेस ऑन अ ग्लोब। सो इफ वी नो द लोकेशन ऑफ द लैटिट्यूड एंड द लैटिट्यूड, इफ देयर नो द मीनिंग, अगर आपको ये याद है 0 डिग्री, फिर 20, 40, 60, 80, 90, फिर 20, 40, 60, 80, 90, 26 डिग्री क्या बोल रहा है, नॉर्थ लैटिट्यूड, 26 डिग्री, 20 अगर ये है, इफ दिस इज ए 20, देन 26 यहाँ पे होगा, राइट, 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड यानी लॉन्गिट्यूड, यानी इसी तरफ बोला, लॉन्गिट्यूड मतलब ऊपर से नीचे, यानी 80 है, 90 यहाँ पे होगा, यहाँ से कहीं आके यहाँ पे अगर आके मीट किया, इफ इट मीट्स ओवर हियर, इट मीन्स वी कैन डायरेक्टली से दैट दिस प्लेस इज द धुबरी. So this is how we can find the location of any place if we know their longitude and the latitude, right? And one thing I want to say that what is grid, ये जो देख रहे हो ना, you know, let me draw you what is grid, एक छूट जाता है. So here we are having the latitudes, right? Latitudes, यहाँ पे आपका ये बन गया longitudes, इधर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे. तो ये जो व्हाट इज ग्रिड, ग्रिड इज अ, ग्रिड इसको बोलते हैं जाल, यानी ग्रिड इज अ काइंड ऑफ अ मॉडल वेयर द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन और मीट्स, इट इज नोन एज द ग्रिड. और यही ग्रिड के जरिए आपको समझाने की कोशिश की गई है. देखो जहां पे दो पॉइंट्स आके मिलेंगे, जहां पे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आके मिलती हैं, चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट हो, वी कैन डायरेक्टली से दैट इट इज अ एग्जैक्ट जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लेस. जैसा कि हमने धुबरी का अभी फाइंड किया, 20 यहाँ पे था, 26 हमने यहाँ एज्यूम किया, 26 हमने यहाँ एज्यूम किया, और बोला 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड, यानी 90 डिग्री ईस्ट ऑफ मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, यानी 80, 90, यानी यहाँ से जो लाइन आके यहाँ पे अगर मीट करती है तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज द धुबरी. नाउ एक चीज और, उसके बाद शायद एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, या कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट. लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, इफ फ्रॉम द अर्थ, इफ फ्रॉम द लैटिट्यूड वी गेट्स द हीट जोन्स, लॉन्गिट्यूड से हमें क्या मिलता है, टाइम, इसलिए मैंने रेड इंक से लिखा है, लॉन्गिट्यूड गिव्स अस द टाइम. नाउ लोकल टाइम कैन बी reckoned by the shadow cast by the sun, which is the shortest or
विच इज द शॉर्टेस्ट एट नून एंड द लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट। यानी जो लोकल टाइम था, लोकल टाइम हम लोग आराम से अंदाजा लगा सकते हैं, पुराने जमाने में लोकल टाइम वाइडली यूज होता था। वी कैन डिटरमाइन द लोकल टाइम बाय सीइंग द सन। अगर वो सर के डायरेक्ट ऊपर है तो उसका क्या होगा, शैडो, हमारी परछाई छोटी बनेगी, उसको हम लोग बोलेंगे कि अभी दोपहर हो रहा है। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा हमारी परछाई बड़ी होती चली जाएगी, राइट। लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड द सनसेट, तो हम लोग बोल देंगे या तो सूर्य ढलने वाला है फिर सुबह उगने वाला है। बट दिस लोकल टाइम इज नॉट एक्यूरेट, राइट। सो इसके फाइंड करने के लिए हमने किसका हेल्प लिया, वी टुक द हेल्प ऑफ द लॉन्गिट्यूड। नाउ so please I'm doing this in the copy because I don't have the smart board and I don't have the pointer also, else I could have do this in the laptop. So let this lockdown over, I will purchase and I will do the things clearly. Anyway, just understood here, try to understand here. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along the meridian will have midday at noon. क्या बोल रहा है कि प्राइम मेरिडियन बोले तो द बिगेस्ट लॉन्गिट्यूड, राइट, विच डिवाइड्स द अर्थ ईस्टर्न एंड वेस्ट, यानी पोल से। यहां से अगर ये जो प्राइम मेरिडियन बोल रहा है, व्हेन द प्राइम मेरिडियन ग्रीनविच ऑल द प्लेसेस अलोंग व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन, यानी अगर इस प्राइम मेरिडियन के ऊपर अगर सीधे अगर सन आ गया, सूरज चाचू आ गए, सन आ गए, तो इस प्राइम मेरिडियन के पास व्हाट एवर द कंट्रीज, व्हाट एवर द नेशन, दे विल एक्सपीरियंस व्हाट, दे विल एक्सपीरियंस नून या फिर मिड डे। यानी प्राइम मेरिडियन के ऊपर अगर सीधे सन आएगा तो उस जोन में, उस रीजन में व्हाट एवर द कंट्री फॉल, दे विल एक्सपीरियंस द नून और मिड डे। As the earth rotates from west to east, I have underlined, as the earth rotates from west to east, these places, these places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind of it. ये आपको पता है कि धरती वेस्ट टू ईस्ट मुड़ रही है, यानी ये धरती है, राइट। सपोज दिस इज अ ग्लोब, if it is moving like this, if it is moving like this, if it is moving in this direction, right, if it is moving in this direction, it means it is rotating in the west to east. अगर ये ऐसे घूमेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज मूविंग इन द ईस्ट टू वेस्ट, बट इट इज मूविंग इन विच डायरेक्शन, वेस्ट टू ईस्ट, दिस डायरेक्शन, राइट। सो इफ इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, एक लाइन समझने लायक है कि वेस्ट टू ईस्ट, कम ऑन, वेस्ट टू ईस्ट, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, यानी ये प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच टाइम यहां से पास कर रहा है, ईस्ट, इसके तरफ जो ईस्ट वाला होगा वो क्या होगा, ईस्ट ऑफ ग्रीनविच टाइम, दे विल अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, यानी ग्रीनविच में अगर यहाँ पे 12 बज रहे हैं, राइट, और अगर अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो यानी जो ग्रीनविच टाइम इस मेरिडियन के जो इस तरफ वाले जो कंट्री होंगे, फ्रॉम दिस पॉइंट, फ्रॉम दिस बिगेस्ट लॉन्गिट्यूड, इफ द कंट्रीज आर लाइंग ऑन द ईस्टर्न साइड, दे विल अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम बाय द 1 आवर। अगर यहाँ पे 11 बज रहे हैं तो यहाँ कितने बजेंगे, 12। They will ahead of Greenwich time, those to the west will be behind it, और जो इस पॉइंट के वेस्ट में है वो क्या होंगे, एक पीछे। अगर यहाँ 11 बज रहा है तो यहाँ कितने बजेंगे, 10, राइट। अब देखो टाइम कैसे निकालते हैं, अब वो भी आपको बता देता हूँ, क्योंकि हमारे धरती का जो इंडिया का जो लोकेशन है वो दिया हुआ है, राइट, आपको फाइंड करना है, दैट इज 97 डिग्री समथिंग। आपको मैं बताता हूँ, लेट अस सी, आई विल टेल, डोंट वरी बॉयज एंड गर्ल्स। So how can we find the time or calculation of time? ये तो आपको पता है, अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू डू 1 कंप्लीट रोटेशन, यानी एक बार ऐसे ये चक्कर लगाने में, ऐसे घूमने में वो कितने घंटे लगाती है, 24 घंटे, है ना, 24 आवर्स, 24 घंटे होगा यार। ऑन तेरा टीवी सुना था कि नहीं? दिस इज अ सॉन्ग फ्रॉम द हनी सिंह व्हेन आई वाज इन द कॉलेज, ये आया था ब्रेकअप पार्टी, राइट, तो प्लीज इग्नोर दैट। एनीवे, अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू डू 1 कंप्लीट रोटेशन। सो वी नो दैट 24 आवर्स अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, ऐसे घूम रही है, कंप्लीट रोटेशन कर रही है ना, 90 90 80, पीछे भी 90 पीछे भी 90, यानी एक 360 डिग्री पे घूम रही है। तो अगर यानी 24 घंटे में 360 डिग्री अर्थ घूम रही है, तो एक घंटा में कितना घूमेगी, 360 डिवाइडेड बाई 24 करेंगे डेफिनेटली, राइट। 24 इंटू 1 24, सो 36 माइनस 24, 6 में से 4 गया 2, 3 में से 2 गया 1, 0, 24 इंटू 5 15 डिग्री। सो वी कैन से दैट कि एक घंटे में अर्थ कितना घूमती है, 15 डिग्री, यानी एक घंटे में अर्थ कितना घूमेगी, 15 डिग्री, राइट।
So 1 hour the earth moves how many degree? 15 degree. So it means if we move 15 degree ahead of east Greenwich time, this will gain 1 hour, and if we move 15 degree towards west, this will lose 1 hour. जैसे कि मैंने बताया ग्रीनविच अगर ये है, ग्रीनविच ये है, अगर 15 डिग्री एक घंटे में घूम गई, 15 डिग्री घूम गई एक घंटे में, तो यानी क्या हो गया, ईस्ट वाला कंट्री एक घंटा गेन कर लिया, और जो द कंट्रीज विच आर लाइंग ऑन द वेस्ट डायरेक्शन, राइट, इफ इट रोटेट्स 1 डिग्री अहेड ऑफ ईस्ट ग्रीनविच टाइम, ये तो 1 आवर गेन किया, ये क्या किया, ये 1 आवर लूज किया. वही चीज मैंने लिखा, इफ यू मूव 15 डिग्री अहेड ऑफ ईस्ट, दीज कंट्रीज विल गेन 1 आवर, एंड इफ यू मूव 15 डिग्री वेस्ट, दे विल लूज 1 आवर. अब कुछ और सिंप्लीफाइड करते हैं, राइट. सो वी नो 15 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स, यानी एक घंटे में कितना अर्थ घूम रही है, 15 डिग्रीज, तो यानी 1 आवर 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 आवर, और वी कैन से 60 मिनट्स. अब हम मुझे पता करना कि अगर एक डिग्री में, अगर एक डिग्री को घूमने के लिए हाउ मच टाइम द अर्थ रिक्वायर. सो हाउ कैन वी फाइंड? सिंपली 15 डिग्री 60 मिनट्स, राइट. 1 डिग्री 60 by 15, 15 divided by 60 इक्वल्स टू 4 मिनट्स, यानी टू रोटेट जस्ट 1 डिग्री, यानी यहां से अगर सिर्फ ऐसे घूमी, सिर्फ ऐसे घूमी, 1 डिग्री घूमी, तो कितना समय लेगी वो धरती, हाउ मच टाइम इट विल टेक? इट विल टेक 4 मिनट्स. सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 मिनट्स. इट मीन्स अर्थ नीड 4 मिनट्स टू मूव 1 डिग्री. 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट का समय, और 1 घंटे में अर्थ टेक द 15 मिनट्स, राइट. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द टाइम्स. इसी वजह से क्या होता है, टाइम डिफरेंस आता है. नाउ अब इसका समझ लो, मैप पे समझ लो, जस्ट सी हियर. So this is the world map, you know, sorry, this is not a world map, this is a world time zone, you can say this is a world time zone. यहाँ देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ये जो लाइन है, जस्ट लुक एट द टिप ऑफ माई पेन, दिस लाइन इज द ग्रीनविच टाइम और प्राइम मेरिडियन, राइट, प्राइम मेरिडियन. इसके आगे जो कंट्री है वो क्या करेगा, गेन करेगा, राइट, 1 आवर का, 15 डिग्री का. यानी देखो, जस्ट लुक हियर, देखो यहाँ पे +2 +3 +4 +5 +6, यानी 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट ले रही है, और 1 घंटे में कितना डिग्री मूव कर रही है, 15 डिग्री. यानी ग्रीनविच ईस्ट डायरेक्शन में ना, इस डायरेक्शन में जितने जो कंट्रीज आएंगे उनका टाइम आगे होगा, और ग्रीनविच के इधर जितने जो टाइम आएंगे उनका टाइम क्या होगा, पीछे होगा, उनका टाइम क्या होगा, पीछे होगा. तो ये जो +2 +3 +4 लिखा, इट मीन्स क्या, इट मीन्स वो 15 डिग्री दिखा रहे हैं. यानी यहाँ पे अर्थ ग्रीनविच है, ये +2 गया, तो यानी कितना, 15 2 = 30, 15 3 = 45, यानी ये 45 मिनट्स आगे जा रहे हैं. 15 4 = 60, 15 5 = 75, 15 6 = 90, उसी तरह 75, 120, 135, 150 और 165. यानी बिकॉज ऑफ दिस, ये +5 का मतलब है +15, राइट. जैसे जैसे ग्रीनविच टाइम के आगे जाएंगे ये प्लस होते जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, लूज होगा. देखो यहाँ पे माइनस वैल्यू दिया गया होगा, -1 -2 -3 -4, यानी हियर वी विल हैव द लेस टाइम, बट हियर वी हैव द मोर टाइम. इसी वजह से हमारा इंडिया, देखो इंडिया, वेयर इज द इंडिया, हियर वी हैव द इंडिया. इट मीन्स वी आर हैविंग द ग्रीनविच के हम लोग इस तरफ है, इसलिए वी आर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम बाय हाउ मेनी आवर्स, बाय 5 hours and 30 minutes. Understood? I hope you understood. Anyway, last topic. So now why do we have a standard time, है ना. ये मैप देख ले, what do I tell? Let me rotate the screen. Sorry guys, facing difficulty. So why do we have a standard time? As I said that, you know, previously we are having that kind of that is what, local time, and local time is determined by seeing the shadow or seeing the sun. But suppose why do we have a standard time? स्टैंडर्ड टाइम की जरूरत क्यों पड़ी है, क्योंकि इंडिया का जो लोकेशन है वो 68 डिग्री ईस्ट एंड 97 डिग्री ईस्ट में है ना, साथ में मिनट्स भी है क्योंकि वो टाइम जोन के हिसाब से. बट दिस, यू नो, दिस हमारे यहाँ जो मीन टाइम है, हमारे यहाँ जो ग्रीनविच टाइम, जो प्राइम मेरिडियन है, हमारे यहाँ जो मेरिडियन क्रॉस करता है, वो कितना क्रॉस करता है, 82.5 डिग्री ईस्ट में, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 9 में, फ्रॉम द इलाहाबाद, यहाँ से, फ्रॉम इलाहाबाद, फ्रॉम इट इज क्रॉस फ्रॉम हियर, राइट. अब व्हाई डू वी हैव अ स्टैंडर्ड टाइम, बिकॉज द थिंग इज दैट
In India, the longitude of 82.5 degree east और 82 degree 30 minutes is treated as the standard meridian, यानी उसको यहाँ पे standard meridian ट्रीट किया गया है और इसी के जरिए हम टाइम कैलकुलेट करते हैं. क्यों? क्योंकि जो थिंक है यहाँ से देखो, सपोज अगर मैं बोलूँ कि अगर कोई आदमी लेटस एज्यूम कि यहाँ पे एक बंदा था, 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 तो और यहाँ पे सन का ओवरकास्ट है, तो उसके अगर वो लोकल टाइम फॉलो करे, इफ यू फॉलो द लोकल टाइम, राइट, एंड इफ अ पर्सन इज हियर, यहाँ से वो यहाँ जाएगा तो सूर्य का जो शैडो होगा वो कुछ और घटेगा, तो उसको लगेगा कि अच्छा बहुत दिन पास हो गया. फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, उसको लगेगा कि अच्छा और बहुत दिन पास हो गया. फिर यहाँ से यहाँ चला गया, उसको लगेगा कि अच्छा बहुत दिन पास हो गया. इस तरीके से वी कैन नॉट गेट द एग्जैक्ट टाइम. उसको लगेगा कि सूर्य ढलता चला जा रहा है और मैंने तो पूरा कवर कर लिया, बट व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम आई कांट फाइंड आउट. उसी तरह अगर इधर से वो इधर आएगा, इधर से वो इधर आएगा, इधर से इधर आएगा और सूर्य की रोशनी इधर से पड़ेगी, तो उसको लगेगा अच्छा यहाँ इतना डिस्टेंस मैंने कवर किया, फिर बोलेगा इतना डिस्टेंस मैंने कवर किया. तो इट मीन्स जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड होते हैं, यहाँ देखो, द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस बाउंड टू डिफर, राइट, क्योंकि लोकल टाइम्स अलग होते थे. फॉर एग्जाम्पल, इट विल डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स, यानी जो हमारे ट्रेन्स जो होते हैं वो डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स पे क्रॉस करते हैं. अगर लोकल टाइम फॉलो करते हैं, सूर्य की रोशनी जितनी पास रहती है उतना शेडो अच्छा बनता है, जितनी दूर जाती है शेडो बड़ा बनते जाता है और हमें पता नहीं चलता है टाइम कितना हो रहा है, तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है. अगर आदमी इधर से इधर गया या फिर कोई ट्रेन यहाँ से यहाँ गई, पता चला अच्छा दोपहर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ गई, अच्छा 2 बज रहा है, 3 बज रहा है, फिर यहाँ से यहाँ गई 7 बज रहा है, हमसे हम अनुमान लगा पाएंगे, यानी दिन ढलते चला जाएगा, बट वी कैन नॉट गेट द राइट टाइम. इन ऑर्डर टू दिस वी हैव अ मेरिडियन दैट क्रॉसेस, दैट इज द ग्रीनविच मेरिडियन, जो लंदन में क्रॉस करता है. ये वाला हमारे इंडिया में कहाँ से क्रॉस करता है? यहाँ से 82.5 डिग्री ईस्ट से फ्रॉम इलाहाबाद, राइट. और इसी को क्या ट्रीटेड किया गया है? इट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम एंड दिस इज नोन एज द ऑल्सो IST और द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. और हम लोग और दिस इज, इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट दिस 82.5 डिग्री और 82 and 30 डिग्री ईस्ट इज एग्जैक्ट 5 डिग्री 30 मिनट्स. क्यों? बिकॉज सी हियर, बिकॉज वी आर ग्रीनविच इधर, वी आर ऑन द ईस्टर्न साइड और हम लोग यहाँ पे हैं. हम लोग कितना आगे हैं? वी आर अहेड ऑफ 5.5. इट मीन्स हम लोग 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं. तो 82.5 डिग्री ईस्ट हमें एग्जैक्ट कहाँ पे क्रॉस करता है? इलाहाबाद में, और वो कितना है? 5 डिग्री 30 मिनट्स. तो अगर 15 डिग्री में होता है 1 आवर, अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे यू विल गेट 5 hours and 30 minutes. सो वी आर अहेड ऑफ, देखो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन दिया है. सो वी आर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम बाय हाउ मच? 5 hours 30 minutes. अगर ग्रीनविच टाइम में लंदन में 12 बजेंगे, हमारे यहाँ 5:30 हो रहा होगा, राइट. So this is the thing which you have to understood, and this is known as the 82 degree east is treated as the standard time. The local time at this meridian is taken as the standard time for the whole country and it is known as the standard time or the Indian standard time, right. अब एक चीज समझने की जरूरत है कि ये जो लोग एंटिटीज हैं, जैसे ये जो वैल्यू है 68 डिग्री एंड 97 डिग्री. 97 डिग्री देखो ईस्ट में है, राइट. 68 डिग्री वेस्ट में. ईस्ट में जाएगा तो जाहिर सी बात है गेन करेगा, जैसे मैंने बताया था, और वेस्ट में जाएगा तो लॉस करेगा. इसी वजह से ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया में, जैसे कि गुजरात में, अरुणाचल में जब सूर्य पहले आता है, अगर इसको आप माइनस करोगे ना 97 को एंड 68 को, चलो मैं करके दिखा देता हूँ. 97 एंड 68 को 17 में से 8 गया 9, दिस इज 8 में से 6 गया 2, 29, राइट. सो ऑलमोस्ट यू विल गेट द 30 मिनट्स, 29 मिनट्स कुछ आएगा, बट एक्यूरेट जो हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग ओवरऑल बोले तो हम लोग 30 मिनट्स लेते हैं. इसी वजह से ईस्ट इंडिया में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अरुणाचल प्रदेश में या फिर असम के इलाके में सूर्य पहले आता है, और गुजरात में क्या होता है? सूर्योदय लेट से होता है, 2 घंटे लेट से होती है, क्योंकि 29 मिनट्स का गैप है. एंड वी ऑल नो दैट 15 डिग्री इक्वल्स टू 1 hour. So if it is 30 degree, 30 degree, then how much? 2 hours. But the correct जो डेटा है हमारे यहाँ वो कितना है? 1 hour 45 minutes. इसलिए मैंने अप्रॉक्स बोला 30 मिनट्स, राइट. मैंने इसको 30
इस वैल्यू को मैंने 30 ट्रीट किया है. So I hope you understood. So this is all about, and I hope you have get all the queries that how we can get the different how can we find the place on a globe, what is time zone, how can we locate the place, what is latitude and longitudes, what are their objectives, and also किस तरीके से आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं, जीएमटी क्या होती है और क्या होती है, राइट. एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये देखो ये जो टाइम है ना जो 180 डिग्री पे आता है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन. यानी 180 डिग्री पे जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनेशनल डेट लाइन, राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड यू एंजॉयड द क्लास. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट द ज्योग्राफी चैप्टर 1, जहाँ मैं हर चीज़ को कवर करूंगा. डोंट वरी, विच इज नॉट गिवन इन द बुक. द नॉर्थ में कितना है, साउथ में कितना है, ईस्ट में कितना है, विल टेल ईच एंड एवरी वन. सो स्टिक विथ मी, कीप लर्निंग, keep watching and keep loving. Thank you so much. This is once again your educator. Take care. Bye bye and have a wonderful day ahead.